क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं है, शुरू कर लीजिए। हाँ, Okay. Vision India Forum welcomes Mr. Zafar Sareshwala ji, one of the erudite scholars in the Islamic world, and to be more specific, somebody who is known to be an extremely astute finance professional and a businessman who has made a name for himself advocating the cause of, more secularist approach towards mankind as far as the Muslim world is concerned. Zafar Sareshwala ji has had a long stint with the Gujarat, the erstwhile Gujarat Chief Minister, Mr. Narendra Modi, who now happens to be India's Prime Minister for the last 10 years. And his stint, during his stint as the Chief Minister, there were a lot of ups and downs that Zafar Sareshwala ji faced. But overcoming all of those and settling the differences with the Honorable Chief Minister of that time, he has grown up to be known in the Muslim circles as one of the PR agents of Modi, if I may, secondly touch upon, as far as advocating the cause of secularism from the BJP or the country's perspective is concerned. Muslims, comprise or constitute an inextricable part of India's, democracy. 20% of Muslims of the demography of India of 140 crores, I'm sure they play a very important part in the years to come when we are going to be reaching the 100th year of independence. As far as the growth, development, sustainability of this country's socio-economic political fabric is concerned, Zafar Sareshwala ji would take us through the various facets of this, issue around secularism, issue around minorities, Muslims, and the kind of approach that needs to be adopted by this community, which has been for centuries a part of the culture of this country, part of the society, part of the fabric of this nation's growth story. They have contributed in immense ways to the country's growth and wherever we stand today. Going forward, especially in the wake of the circumstances that have unfolded in the last 10 years, with Hinduism's, narrative being superimposed by some, nepotist, lobbies. What is Zafar Sareshwala's stand on the Muslims during Mr. Modi's tenure as the Chief Minister, now over the last 10 years and going forward, assuming 2024 is going to be a kind of a watershed election, and most people who belong to the kind of a so-called anti-secular stand of the government, they fear so much so, whether their fear stands justified or something which has been blown out of proportions, is all the things that Mr. Zafar Sareshwala is going to touch upon and guide us through a very, very kind of a balanced society from a religious, secular perspective, which will contribute to the country's growth socially and economically. Mr. Zafar Sareshwala ji, over to you. Take us through the future of Muslims vis-a-vis India in the years to come. देखिए, मुसलमान जो है या हिंदू है, इस मुल्क की आबादी जो भी है, वो दोनों का मुकद्दर भी सेम है, और चूंकि वो एक हैं, भाई रिक्वायरमेंट दोनों की एक। आप मुझे ये बताइए, क्या मुसलमान की जो जरूरत है और एक हिंदू की जरूरत अलग है? भाई एक हिंदू क्या चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ाई करें, मैं जिंदगी में तरक्की करूं, सरकार की तरफ से जो मिलता है, भाई रोड कनेक्टिविटी है, ट्रेन है, एयरलाइन है, या जो जो चीजें हैं, तो वो भी यही चाहता है। वो चाहता है कि उनको हेल्थ मिले, बने। तो मैं समझता हूं कि ये मुसलमान और हिंदुओं को अलग खाने में रखना यही गलती होगी। क्योंकि देखिए, मैं मुसलमान हूं, अपने घर में हूं, लेकिन जब मैं बाहर आता हूं तो मैं एक हिंदुस्तानी हूं। मेरी भी रिक्वायरमेंट या किसी मुसलमान की भी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली वो है जो एक हिंदू की है। भाई मुसलमान भी चाहता है कि वो जिंदगी में तरक्की करे, मुसलमान भी चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ाई करें, एजुकेशन हासिल करें, अच्छी सड़कें हो, अच्छा डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उसके घर में बिजली आए, उसके वहां भी गैस का कनेक्शन हो, उसको भी टॉयलेट मिले।
तो मैं समझता हूं कि जो रिक्वायरमेंट एक मुसलमान की है वही हिंदू की है, एक हिंदू या जो भी हिंदू लीजिए या पारसी क्रिश्चियन जितने भी हैं हिंदुस्तानी, हर एक की रिक्वायरमेंट भी वही है। तो चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है और हमारी चाहते भी वही है, तो हमारे सोल्यूशन भी वही है। ये हो ही नहीं सकता कि एक मुसलमान का सोल्यूशन अलग होगा और हिंदू का सोल्यूशन अलग होगा। तो ये जो भेदभाव की राजनीति है, इससे फायदा किसको होता है? देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि एक सियासी पार्टी जो है वो अलग है, वो उनकी अपनी सियासत जो भी हो, पावर में आने के लिए वो जो भी करते हैं। हमारे लिए पैमाना जो है वो किसी का भी ये हो, पॉलिटिकल पार्टी का, वो पार्टी जब पावर में आती है या पावर की कुर्सी पर जब बैठती है, तब वो क्या करती है या नहीं करती, हमारा पैमाना वही होना चाहिए। ये देखिए, हर इसमें ऐसा है नहीं कि कुछ पार्टियां जो है वो मुसलमानों की मोहब्बत में बोलती है बहुत सारी चीजें, और कुछ है मुसलमानों की नफरत में बोलते हैं पॉलिटिकल लीडर अपनी पॉलिटिकल स्पीच में, या जो आजकल जो सोशल मीडिया वगैरह है, कुछ आपकी मोहब्बत में बोलते हैं, कुछ आपकी तरफदारी में बोलते हैं, कुछ आपकी मुखालिफत में बोलते हैं। मैं समझता हूं कि दोनों गलत हैं। इसलिए कि जो आपकी मोहब्बत में बोलते हैं या आपकी तरफदारी में बोलते हैं वो भी झूठ है। इसलिए कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों का जो इकोनॉमिक एजुकेशन ये जो है पूरा, यानी जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, वो 75 साल पहले आजादी के वक्त मुसलमानों की जो पोजीशन थी, आज 75 साल के बाद मुसलमान दलित और ट्राइबल से भी पीछे हो गया। तो वो भी झूठ है, जो मोहब्बत में बोलते हैं, जो तारीफ में बोलते हैं, और जो नफरत में बोलते हैं वो भी झूठ है। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको तो ये देखना चाहिए कि वो सरकार की जो स्कीमें हैं, जो भी, वो स्कीमों का फायदा हम कितना उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, हमारा पैमाना ये होना चाहिए। बीजेपी की जो सरकार है, इसमें मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं के बराबर है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी की तो छोड़ दीजिए बात अभी आप। बीजेपी जो है वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पहले से उसका एक व्यू है। आज नहीं, पहले से भी बीजेपी कभी भी मुसलमानों को टिकट नहीं देती थी, या वो उनके उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था। लेकिन जो लोग मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के वोट जिनको मिलते हैं, उनका आप बताइए मुझे। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो इलेक्शन हुए 5 स्टेट के, भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और वो मिजोरम, जहां इलेक्शन हुए, आप खाली, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में 248 सीटें हैं असेंबली की। कांग्रेस पार्टी, जिसको मेजॉरिटी, सबसे बड़ी तादाद में मुसलमानों के वोट मिलते हैं, उन्होंने, आप ईमानदारी से बताइए कि कितने मुसलमानों को टिकट दी? 2, यानी 248। जब मुसलमान, जबकि 7 या 8% है, तो कम से कम 20 मुसलमानों को टिकट मिलनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो 2 को दी। बीजेपी एक भी नहीं देती, इन्होंने 2 दी। वही आप देखिए, आप जाइए छत्तीसगढ़ में, क्या मुसलमानों को कितनी, एक भी टिकट नहीं मिली। आप तेलंगाना में जाइए, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दी। और आप अगर एक्स्ट्रापोलेट कीजिए, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ था जब, तो कितने मुसलमानों को टिकट दी? गुजरात में 3। तो ये जो सियासी पार्टियां जो मुसलमानों के वोट लेती हैं, वो भी मुसलमानों को अपने, यानी पावर में हिस्सेदारी तो बहुत दूर की बात है, वो असेंबली या पार्लियामेंट में आने में भी टिकट नहीं देती। तो मैं नहीं समझता कि ये अब मुसलमानों के लिए इश्यू है। अब मुसलमान अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए, इसलिए कि देखिए, मुसलमान को मालूम है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, ये इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। यानी मुसलमान की पोजीशन पॉलिटिकली सिर्फ एक वोट देने वाली कौम बनकर रह गया है। ना ये आपको पार्लियामेंट में टिकट देंगे, ना ये आपको असेंबली में टिकट देंगे, ना आपको ये काउंसिल में देंगे। तो आप जब, ना आप काउंसिल में जाओगे, ना आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाओगे, ना आप असेंबली में जाओगे, ना आप पार्लियामेंट में जाओगे, तो कौन सी सियासत करोगे? तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है कि पॉलिटिकली उनका डेसिमेशन कंप्लीट हो गया। और ये आज की बात नहीं है भाई, 1952 का जो पहला इलेक्शन हुआ,
तब तो बीजेपी आरएसएस नहीं थी ना। तब भी आप मुझे बताइए कि कितने मुसलमानों को टिकट मिलती थी। तो मैं समझता हूं कि अब मुसलमानों को अपना रेलेवेंस जो है इस मुल्क में, वो इस रास्ते से नहीं होगा। उसको तालीम की बुनियाद पर अपने आप को तालीम याफ्ता बनना, हाईली एजुकेटेड बनना, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ इस रास्ते से अपना रेलेवेंस बनाना पड़ेगा। ये ये मुसलमान जो रेडिकल मुसलमान या फंडामेंटलिस्ट जिनको हम कहते हैं, जो ध्रुवीकरण और राजनीतिक भेदभाव के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कारण से देश में ये जो भेदभाव है और ये जो पोलराइजेशन है, ये ध्रुवीकरण जो हुआ है समाज में, ये बहुत जहरीले पैमाने पे चढ़ता चला जा रहा है। और हर चीज में एक तरह का योर साइड एंड माई साइड वाली पॉलिटिक्स जो है सोशल फैब्रिक का इंट्रिकेट पार्ट बनती चली जा रही। मुस्लिम्स अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहे, और ये चीज अगर हम सड़क पे निकले तो हम महसूस करते हैं कि उनको एक 10 साल में, अब ये जो फर्क मैं एज ए कॉमन मैन महसूस करता हूँ, पता नहीं राजनीति के तौर पे आप लोग कितना करें नहीं करें, एज ए कॉमन पर्सन वी फील दैट दे फील द मुस्लिम्स आर फीलिंग मोर एंड मोर ostracized over the last few years. Is it something which is kind of self-designed, or it has been the responsibility lies with something like the social media, which has been responsible for driving this false narrative, and it has ingrained in the psychology, in the psyche of the Muslims, that they are second class citizens of India? What has been the reason? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मीडिया का नैरेटिव है। मीडिया में अगर आप टीवी देखेंगे तो टीवी में ये पूरा नैरेटिव आता है, ट्विटर पे और जो फेसबुक पे। और क्या हो गया कि इस किस्म के जो लोग हैं वो हावी हो गए, वो इसलिए वो बहुत ज्यादा तादाद में तो उनकी चलती है, और वो इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे मुल्क में ऐसा है। लेकिन अगर आप सड़क पे चलें, मैं रात दिन सड़क पे चलता हूं, मैंने ये तालीम और तरबियत के जो मैं प्रोग्राम करता हूं, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने अब तक 8 साल में 9 साल में ऑलमोस्ट 65 शहरों में किए हैं प्रोग्राम। यानी शायद हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट है, आसाम के उस तरफ, उसको लेकर, या आंध्र प्रदेश और मेरे ख्याल से हरियाणा, बाकी कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जहां पर मैंने ये प्रोग्राम नहीं किया। और हिंदी बेल्ट जो है, जहां ज्यादा ये आप जो जो बता रहे हैं, वो तो वहां मैंने सबसे ज्यादा किए। यूपी के अंदर मैंने कम से कम 13 शहरों में किए, मध्य प्रदेश में किए मैंने, भोपाल में किया, इंदौर में किया, राजस्थान में किए मैंने, गुजरात के अंदर किए। तो ऐसा नहीं है ग्राउंड पे, इसलिए कि हम रात दिन भाई सड़कों पे चलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, बसों के अंदर, हवाई जहाज में, रेलवे में। तो ऐसा नहीं है। हाँ, और मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ भी नहीं। ये एक एक मीडिया के जरिए ये एक बात फैलाई जाती है कि मुसलमान डरा हुआ है। बिल्कुल नहीं डरा हुआ मुसलमान। अपने कारोबार में, आप यूपी में, मैं लखनऊ में बहुत गया हूं, बल्कि अयोध्या, हमने 2021 दिसंबर में हमने अयोध्या में भी तालीम और तरबियत का प्रोग्राम किया। और बल्कि अयोध्या का जो मेरा प्रोग्राम है वो सबसे कामयाब तरीन प्रोग्रामों में था। और आप जानते हैं कि अयोध्या तो जो पूरा एक नैरेटिव जो चल रहा है, तो मुझे लोगों ने ये कहा कि आप अयोध्या में कैसे कर रहे हैं, लेकिन मैंने किया वहां पर और बहुत कामयाब हुआ। बड़ी तादाद में हिंदू मुसलमान आए उस प्रोग्राम में, बच्चे। बल्कि हमने वहाँ अवध यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम है उसमें किया था, 1200-1300 की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम था। जितने लोग ऑडिटोरियम में थे बच्चे, उससे डबल तादाद में बाहर थे। तो मैं तो 3 दिन रहा अयोध्या में। ये अभी जो सरचार्ज जो आप एटमॉस्फेयर बताते, उसी जमाने में आना जाना हो रहा था मेरा, इसलिए कि लखनऊ से मैं बाय कार जाता था, आता था, रास्ते में रुकते थे। अच्छा, हमने जो यूपी के शहरों में जो प्रोग्राम किए, तो गाड़ी से सफर होते थे हमारे, रास्ते में रुकते थे भाई, ढाबों में रुकना होता था या खाना पीना। तो ऐसा नहीं है कुछ लोगों के अंदर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट हो रहा है। इसलिए कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे उस किस्म के लोगों की ज्यादा तादाद है, तो वो दिखता है। लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है। अगर ऑन ग्राउंड ऐसा होता जो आप बता रहे हो, तो फिर तो ये मुसलमान इस मुल्क में रह ही नहीं पाता। भाई मुसलमान कारोबार में है बहुत बड़ी तादाद, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर मुसलमान डिस्प्रोपोर्शनेटली,
आप अहमदाबाद में मैं हूं अभी, जहां से मैं बात कर रहा हूं, कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अहमदाबाद के अंदर मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, यानी ठेले लगाने वाले या फुटपाथ पर अपना कारोबार लगाने वाले। इसी तरह आप बंबई में चले जाइए, इसी तरह मैंने लखनऊ में देखा, दिल्ली में देखा, और बहुत सारे शहरों में देखा। तो अगर ऐसा होता तो मुसलमान की तो दुकान, भाई मुसलमान का कारोबार थोड़ी मुसलमान की वजह से चल सकता है। भाई मुसलमान कहीं पर भी 15 या 20% से ज्यादा तो है नहीं, तो उसका जो कारोबार चल रहा है, उसकी जो दुकानदारी चल रही है, वो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं की वजह से चलती है। तो ऐसा नहीं है, ये ग्राउंड पे ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे या टीवी पे ये दिखता है। अगर आप टीवी खोल के देखें या सोशल मीडिया देखें तो दिखता है, वरना ऑन ग्राउंड ऐसा बिल्कुल नहीं। ये वो देश है जहां पर दादा साहब फाल्के अभी अनाउंस हुआ, ये जो अवार्ड्स दिए गए, वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के दिया गया। अगर हम विश्व कप की बात करें, जो इस देश का एक तरह से रिलीजन है, तीसरा रिलीजन अगर बोले हिंदू मुसलमान के अलावा, तो वो क्रिकेट ही है। अब अगर क्रिकेट इतना बड़ा यहाँ पर देश में रिलीजन है, उसमें विश्व कप में अगर इस देश ने ताली बजाई, तो मुझे जहां तक याद है, हालांकि मैं क्रिकेट फॉलो नहीं करता, तो मोहम्मद सामी के विकेट लेने पर ही तालियां बजती थी। तो जब ये देश का कल्चर है, जब सबको सामने दिखता है, क्योंकि मैं सड़क पे एक दिन, आई विल टेल यू अबाउट माय स्टोरी। देयर वाज अ मैच ऑफ इंडिया, probably it was a semi-final or final, I don't remember, whatever it was. Mohammad Sami had taken some 7 wickets, and the kind of applause that was, echoing on the streets. I thought, I did not really realize what had happened. And then when I came to know, and every, pedestrian, every, hawker, vendor on the street, they were all shouting, Shami, Shami. So now, if this is the culture of my country, where 80% are so-called non-minorities, then what makes this narrative drive? I don't understand. A land of Abdul Kalam, what makes this narrative drive, Mr. Suresh? देखिए, अब ये जो शाहरुख खान, भाई आज शाहरुख खान क्यों है? क्या मुसलमानों की वजह से? सलमान खान, भाई सलमान खान आज सलमान खान क्यों है? यार उनकी जो फिल्म का जो 500 करोड़ और 1000 करोड़ का जो कलेक्शन होता है, तो क्या मुसलमानों की वजह से होता है? बल्कि आपको अगर याद हो कि जब शाहरुख खान की पठान फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो एक तबके ने हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की थी ना, एक तबके ने ट्विटर पे और पूरी एक नैरेटिव बनाई थी। I remember, लेकिन sir. I remember there was a time when, though I am not a very big fan or involved in the social media, I was told, and I used to hear from unknown quarters, from all kind of places, that boycott. There is something called boycott boycott Khan. But then suddenly the next news was that the Shah Rukh Khan's movie has broken and shattered global records. And Shah Rukh Khan, I mean, is a Muslim. So how do you justify that? बिल्कुल, मैं तो देखिए ना, वो फेल हो गया ना, और वो बॉयकॉट बॉयकॉट पठान का एक ट्रेंड चलाया था, लेकिन चला। उसके बाद शाहरुख खान की वही नहीं, उसके बाद जवान आई और बड़ी हिट हुई, अभी डंकी आई, वो बड़ी हिट हुई। सलमान खान की अभी जो आई फिल्म लास्ट, जबरदस्त हिट हुई, टाइगर की सीरीज की। तो देखने वाले कौन है भाई? अच्छा, शाहरुख खान मुसलमान है, सलमान खान मुसलमान है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये चलता नहीं है। एक तबका है जो कोशिश कर रहा है कि ये मुल्क हिंदू मुसलमान में बटे और ये हिंदू मुसलमान की बाइनरी आए। लेकिन चूंकि यहाँ के खमीर में, देखिए यहाँ के खमीर में सेक्युलरिज्म है, अंदर अगर आप झांकोगे तो यहाँ के हिंदू मुसलमान, कोई अपने आप को हिंदू मुसलमान वो घर में देखता है, बाहर निकलता है तो वो हिंदुस्तानी देखता है। किसी ने शाहरुख खान को, हालांकि वो मुसलमान है, लेकिन किसी ने शाहरुख खान को इसलिए नहीं देखा कि ये मुसलमान है। इसी तरह आपने मोहम्मद सामी की बात की, किसी ने ये नहीं देखा कि मोहम्मद सामी मुसलमान है कि हिंदू है कि कौन है। भाई वो क्रिकेटर है, उसने 7 विकेट लिए। तो मैं समझता हूं कि देखिए ये असल मुल्क है। लोग नैरेटिव दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ के लोग नैरेटिव को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कामयाब कभी भी नहीं सर, होंगे। 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या में, जहां पर 110 करोड़ हिंदू अप्रोक्सीमेटली अगर है, 105 करोड़ 7 करोड़, उसमें अगर हम एक क्रिकेट टीम 11 लोगों की बना रहे हैं, जो कि करोड़ों का धंधा है, करोड़ों का व्यवसाय है,
उसमें मैंने कुछ दिनों पहले फॉलो किया कि 3 फास्ट बॉलर अगर थे तो तीनों लड़के मुस्लिम थे। ये और एंड बीसीसीआई बाय द वे इज लेड बाय मिस्टर अमित शाह सन, मिस्टर जय शाह, एंड आई एम श्योर अमित शाह इज नॉट अ मुस्लिम। So how do you justify all this? नहीं How do बिल्कुल, you देखिए मैं तो सर एक सेकंड और, हाउ डू यू जस्टिफाई इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा एक आर्थिक मुद्दा है। डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो आर्थिक मुद्दा है, और सिल्वर मेटल जो हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, अगर हम हैवी इंडस्ट्रीज की बात करें, हम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करें, अगर जितनी भी 235 कंपनियां हैं या हैवी इंडस्ट्रीज है, ये सारी कंपनियां दोनों अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन दोनों में अरबों खरबों करोड़ों देश की जो आर्थिक नींव है, ये 70 साल से 75 साल से पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेड है। प्राइवेट सेक्टर आज भी उनके आसपास कहीं नहीं पहुंचता, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू टाटाज और समबडी एल्स। इन दोनों डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सचिव जो भारत सरकार नियुक्त करती है अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी के माध्यम से, दोनों मुस्लिम हैं। अली रिजवी साहब और एक और रिजवी साहब है, दोनों रिजवी हैं बाय द वे, ये दोनों मुस्लिम्स हैं। तो इसके बावजूद भी जहां देश की बागडोर आप मुस्लिम्स के हाथ में पकड़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, देखिए मैं तो आपको कह रहा हूं कि ऐसा है ही नहीं भाई। बीजेपी की हुकूमत में है ना, वही आपने जो कहा, ये तो बीजेपी की हुकूमत है। हमने तो मोदी साहब का गुजरात भी देखा था ना। गुजरात में भी बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में मुसलमान ऑफिसर थे। आज की तारीख में भी गुजरात गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में 3-4 बड़ी पोजीशन पर, खासतौर से जो वाइब्रेंट गुजरात का पूरा भी जो होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट पूरे मुल्क का होने वाला है, उसकी बागडोर भी एक मुस्लिम ऑफिसर है, वो चला रहे हैं। तो देखिए, सरकार या कोई भी वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, काबिलियत किसमें है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं मुसलमानों को कि अपने अंदर में तालीम के बुनियाद पर काबिलियत पैदा करो, तालीम की बुनियाद पर, और ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। जिस दिन आपके अंदर ये हो गया ना, तो आप मुझे बताइए कि दुनिया में कौन है जो आपको पीछे कर सकता है। इसलिए कि हर आदमी को काबिलियत चाहिए, हर आदमी चाहता है मेरे पास ईमानदार अमानतदार लोग आए। तो आपको इस रास्ते से, इसलिए मैंने कहा ना कि ये पॉलिटिकल रास्ता जो है अभी, उससे मुसलमानों का रेलेवेंस नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां आपको टिकट ही नहीं देंगी एक। और अगर बहुत बहुत तो आप जीत भी गए, तो वो पार्टियां आपको देगी क्या? वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, या कब्रिस्तान की मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी अफेयर्स, इसके अलावा मिलने वाला नहीं है। तो मैं मुसलमानों को कहता हूं कि आप अपने अंदर में आला दर्जे की तालीम, यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, वो हासिल कीजिए। उसके लिए कोई नहीं रोक रहा आपको। आप मुझे बताइए कि मुझे तालीम हासिल करनी है और हाईली एजुकेटेड अगर मुझे बनना है, तो हिंदुस्तान में कोई रोक रहा है मुझे अगर यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करनी है, तो क्या मुझे कोई रोक सकता है? यूपीएससी के इम्तिहान में बैठने के लिए मुझे कोई रोक सकता है? जितने भी अभी तो गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स हैं अभी, शाह फैजल ने फर्स्ट रैंक हासिल किया था हम्म, यूपीएससी में, जम्मू कश्मीर कैडर का लड़का है, अभी वो डिप्टी सेक्रेटरी है सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट में। बीच में वो स्टार्टेड हिज ओन पार्टी, ही फ्लोटेड हिज ओन पार्टी एंड ही हैड almost adopted the same route as his brethren had been doing, based on some political narratives being ingrained in their spirits, which failed to get diluted despite the kind of a transparent system, academic and competitive system that this government of Mr. Modi has been driving. Without that, how could a Shah Faisal get a UPSC top rank? Even today, a lot of people qualify, जहां पर 60 लाख बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, 10 लाख बच्चे पर्चा भरते हैं, और 6 से 7 लाख लोग एग्जाम देते हैं। उसमें से कई ऐसे लड़के होते हैं जो टॉप आईएएस की पोजीशंस पाते हैं। ये यूपीएससी का जो इंटरव्यू पैनल होता है, क्या वो देश के बाहर से आता है? कैसे उनको आईएएस की नौकरी मिल जाती है? नहीं बिल्कुल, देखिए शाह फैसल मेरे ताल्लुक में है, मेरी बातचीत होती रहती है। मैंने भी उनको ये, जब वो जो आपने जो बात की, मैंने उनको कहा यार कहाँ तुम ये सब चीजों में पड़ गए भाई, तुम ये रास्ता है। और देखिए बड़ी बात इसमें ही आई है, हालांकि उन्होंने तो आईएएस से रेजिग्नेशन दे दिया था। और आपको पता है, एक बार आप आईएएस से रेजिग्नेशन दे दो ने, तो सरकार फिर वापस सरकार लेती ने नहीं है। वापस लिया इसको, उसको लिया, बुला के लाया। सरकार ने सरकार ने उनको वापस लिया। और उनके साथ जो शैला रशीद है, जो जेएनयू की सेक्रेटरी जनरल थी, वो भी मेरे टच में है।
उसने भी कहा कि नहीं जफर, मैंने उसको ये कहा देखो ये रास्ता ही नहीं है, रास्ता ये है मैंने उसको ये कहा कि भाई तुम पहले अपनी पीएचडी कंप्लीट करो, क्यों नहीं की तुमने? तो अभी वो पीएचडी भी कंप्लीट कर रही है एंड शी इज गोइंग टू गेट अ गुड जॉब इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। मैंने कहा ये तरीका है। और शाह फैसल के मैं टच में हूं, अभी वो बिल्कुल डिप्यूटी सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट ने उनको वापस लिया, मौका दिया, कहा जाओ चलो ठीक है जो भी है। बोलते हैं ना भूल चूक, हमारे यहाँ कहते हैं भूल चूक। कल ये लड़का 28 साल बाद 30 साल बाद भारत का डिफेंस सेक्रेटरी बनेगा। बिल्कुल। तो तब ये रास्ता है, ये रास्ता है। देखिए मैं मुसलमान बच्चों को कहता हूं यही रास्ता है। और कोई लोग कहते हैं भेदभाव, मैंने कहा नहीं, भेदभाव जैसी चीज ही नहीं है। मैंने कहा मैं खुद हूं, अगर आप मुझे बताइए, मैं रिक्रूट करता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बच्चों के इंटरव्यू लिए, मैंने कभी नहीं देखा ये हिंदू है कि मुसलमान है। मैंने देखा भाई मुझे ये लेवल का चाहिए, एनालिस्ट चाहिए। ये एनालाइज करने का कंपनी में किसमें क्षमता है, बस। मैंने कहा आज की तारीख में जो कुर्सी पे बैठता है ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। भाई मुझे तो ये लेवल के लोग चाहिए। सरकार को भाई मुझे ये काम करने के लिए ये आदमी चाहिए। उस वक्त सरकार ये नहीं देखती कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है। बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं मुसलमानों को ये कहता हूं कि देखो कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आप जो है इतने काबिल बन जाओ ईमानदारी और अमानतदारी के साथ कि कोई आपको पीछे कर ही नहीं सकता। जफर भाई, इतिहास को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। द हिस्टोरिकल रिलेवेंस एंड द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ इस्लाम एंड द एंट्री ऑफ इस्लाम इन इंडिया through the attackers who came from especially from the Persian and Middle East world, something which the country has lived with over centuries. And the modus operandi was always, they came, they attacked, they conquered, they converted. Now ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस ने अपनी छाप जो है आज तक छोड़ रखी है। और इसको हम किस तरह से डाइल्यूट करें, ये जो इंप्रेशन है, और ये तरह तरह से सिर उठाता है। हमें मालूम है हम आएंगे, पार्टीशन पे आएंगे, इन चीजों पे आएंगे, लेकिन इतिहास को हम कैसे डाइल्यूट करें, उसका जो रेलेवेंस है, क्योंकि ये लोगों में बहुत एक अभिन्न, एक काइंड ऑफ एक इंडेलिबल काइंड ऑफ इंप्रेशन क्रिएट करके, और दिन पे दिन हिस्ट्री डिस्टॉर्ट भी होती रही है। तो डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल रही है फॉर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ अ डिवाइड। हाउ डू यू सजेस्ट टू डाइल्यूट दिस काइंड ऑफ नैरेटिव? देखिए पहली बात तो एक बात ये समझ लीजिए, वो बादशाह थे, वो जो आए जिनका भी आपने बोला कॉन्करर थे, वो किंग थे। बादशाह तो हिंदू हो कि मुसलमान हो, बादशाह तो बादशाह की होती है। तो वो बादशाह के किसी एक्ट को आप प्रेजेंट मुसलमानों से कैसे जोड़ सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा, यार वो आप कैसे जोड़ सकते हैं? भाई वो बादशाह आए थे जहां से भी आए थे, उन्होंने हुकूमत करने आए थे। वो देखिए उनका इस्लाम, वो यूं कह सकते हो कि देवर मुस्लिम्स। जैसे एक बादशाह बुद्धिस्ट था, ये एक बादशाह हिंदू था, वो मुसलमान थे। बाकी उनका कोई इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, वो कोई रोल मॉडल भी नहीं है। वो जो बादशाह थोड़ी रोल मॉडल है हमारे हमारे रोल मॉडल जो है वो प्रॉफिट की जिंदगी है, प्रॉफिट है, या औलिया अल्लाह है, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, या निजामुद्दीन औलिया है। ये बादशाह जो थे ये कोई हमारे रोल मॉडल मुसलमानों के नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उनका कोई भी एक्शन अगर है सही या गलत, हाउ कैन दैट बी रिफ्लेक्टेड अपॉन प्रेजेंट डे मुस्लिम्स? तो ये भी तो गलत है ना कि आप वो जैसे बाबर की औलाद है, भाई हम बाबर की औलाद कहां से हुए? बाबर तो फरगना में जाके मर गया था। तो ये भी जो नैरेटिव है ये भी बहुत गलत है। भाई वो अगर कोई हरकत किसी ने 500 साल पहले की हो, तो क्या आप आज के मुसलमान को उससे कैसे जोड़ सकते हैं? बल्कि अगर बाप ने कोई गलत काम किया है अगर, तो आप क्या बेटे को उसकी सजा दे सकते हैं उसकी? तो मैं समझता हूं कि ये नैरेटिव भी गलत है बिल्कुल, कि वो पुराने बादशाहों ने क्या किया नहीं किया वो जाने, आज के मुसलमान का उससे क्या लेना देना, कुछ भी नहीं। तो ये भी नैरेटिव बहुत गलत है। 1990 में जो कश्मीरी पंडित वाला जो हादसा है, या फिर आज की डेट में केरल में जो कन्वर्शंस को लेके आवाजें उठती हैं, या आईएसआईएस ज्वाइनिंग करने को लेके जो आवाजें उठती हैं, नॉट ओनली फ्रॉम केरल बट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आल्सो, बट प्रोमिनेंटली मोर prominently from the state of Kerala, because it is very closely connected business wise with the Middle East. And Jammu Kashmir, for example, had a very unfortunate episode in the Kashmiri Pandit exodus,
which even echoes even to date, even till date. Even yesterday, Mr. Call Justice Call issued a statement about that exodus. Now, the retired Supreme Court judge who just recently retired. Now, probably your question has a little bit of relevance to this issue, that वो जो बादशाहत है, वो जो मॉडल्स थे, वो जो अप्रोच थी, आज भी वो अप्रोच जो है मुसलमानों के साथ जोड़ के रखी गई है। तो इसके लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए कि लोगों के दिमाग से ये चीज हटे कि हमारा उस बादशाहत की माइंडसेट के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। हम भी जीने के लिए आईएसआईएस का माध्यम, या फिर अब जिहाद, जिहाद को कैसे आप जिंदगी के साथ जोड़ना चाहेंगे? ये people are really confused, and that is why these narratives by the media houses, by the social media and the political parties, the entire machinery works in sync to drive this media of divide and rule, and therefore the entire country suffers. कैसे इसको म्यूटेट किया जाए? देखिए, जो कश्मीर की आपने बात की, जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत है, सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि मैं तो कश्मीर, मेरा जाना बहुत हुआ, तालीम और तरबियत के हमने प्रोग्राम किए, तो बहुत सारे कश्मीरों से मेरी बात होती थी। मैंने बोला भाई तुम जाओ, तुम्हारे पड़ोसी थे, तुम इतने सालों तक साथ में रहे, सदियों तक साथ में ही रहते थे, तुम्हारे आसपास में घर थे, कभी उनको ये नहीं मालूम था कि वो हिंदू है, कश्मीरी पंडित है, तुम मुसलमान हो, साथ में रहे। भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, सरकार को छोड़ दीजिए। मैंने कहा सरकार को छोड़ दीजिए, सरकार क्या करती है नहीं करती छोड़ दीजिए, तुम्हारा जो पड़ोसी था जाओ उसको लेकर आओ, अपने पड़ोस में रखो। तो बिल्कुल, वो तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत था, वो एक नाइंसाफी थी। और मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीरी जो भाई हैं अभी मुसलमान जो है, मैं उनको कहता हूं, अभी भी कहता हूं कि भाई जाओ, छोड़ो गवर्नमेंट करती है नहीं करती, उनको बसाती है नहीं बसाती, अपनी जगह पर है, लेकिन उनको ले आओ अपने पड़ोस में, उनके घरों को। ये अच्छा नहीं है, इसका अजाब तुम पर आएगा, इसलिए कि वो इंसान है भाई। अगर उनके साथ जुल्म हुआ है तो आपको उसकी तलाफी करनी पड़ेगी, और बेस्ट ये है कि आप उनको लेकर आओ। रही बात आईसिस और उसके अंदर, देखिए कोई मुसलमान हिंदुस्तान से गया नहीं है आईसिस में या अलकायदा में, मैं नहीं बोल रहा। ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट हमारे होम मिनिस्टर थे तब, राजनाथ सिंह साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कहा है कि अब तक 17 भी हिंदुस्तानी मुसलमान वहां गए नहीं है, हमारे पास 17 से ज्यादा 17। और वो भी उन्होंने कहा कि हमको ये खबर भी किसने दी, वो माँ बाप ने दी कि देखो हमारे ये बच्चे पता नहीं किसकी बात में आकर वहां गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि 20-25 करोड़ मुसलमानों के अंदर में अगर 17 मुसलमान अगर गए भी हैं तो क्या ये कोई प्रपोर्शन है? बिल्कुल नहीं है। यानी ये जिहाद का ये बिल्कुल गलत है। कोई मुसलमान जिहाद में चंद होंगे, लेकिन उससे आप पूरे मुसलमानों को अगर उन पर चिपकाओ तो ये बहुत गलत है। और ये तो हमारी गवर्नमेंट कहती है, हमारी गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं। और आगे ये सीआईए की रिपोर्ट है, सीआईए की, कि जितने लोग अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं जिहादी मूवमेंट में पूरी दुनिया में, उसमें 1% भी मदरसे के नहीं है, और वो इंक्लूडिंग पाकिस्तान है ही नहीं। ये तो सीआईए की रिपोर्ट है। तो ये जिहाद वाला जो चिपकाना मुसलमानों पर, ये भी गलत है। यस, चंद लोग हैं, बहुत कम है, वो माइक्रो माइनॉरिटी है, उससे आप पूरी मुस्लिम कौम पर करना, ये भी एक नैरेटिव का पार्ट बन गया है आज, कि कुछ भी होता है आप पूरी कौम को अंदर चिपकाते हो, ये बिल्कुल गलत है। मुसलमानों में कोई ऐसा है ही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं ना वो हर कौम में होते हैं, तो ऐसे हैं, लेकिन कम्युनिटी में उसके खिलाफ बहुत सारा काम हो रहा है जो मीडिया की ग्लेयर के बाहर है, जो हो रहा है कि भाई ये गलत है, ये बिल्कुल जो गलत है वो गलत है, उसको कोई। सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस, ये जो अब ये गई सही गलत तो बड़ा विषय मूलक बात हो जाती है। अगर हम उद्देश्य मूलक बात पे आए और या फिर ऑब्जेक्टिवली उसको डिस्कस करने का प्रयास करें, ये छोटी मतलब मुद्दे, ऐसे कई मुद्दे हैं जो एक दूसरे के साथ अगर रहते हैं, एक परिवार की तरह रहना चाहते हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी परिवार चलेगा। नहीं तो ये द्वंद्व मचा रहेगा और दिन पे दिन जो है द लॉ ऑफ द जंगल विल फाइनली प्रिवेल। नाउ इस सिचुएशन में ये गाय का जो मुद्दा है, कामधेनु का जो मुद्दा है, ये रिलीजियस सेंटिमेंट है। अब मुस्लिम्स डू नॉट बिलीव इन दैट, इफ आई मे से सो।
वही 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर 4 भी अगर एक हो जाए तो मुक्का बन जाता है। तो अब ये इस तरह की जो चीजें हैं, आपका क्या सजेशन है एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ? क्योंकि ये जो गाय का फिर क्या है कि दूसरे लोग इसी चीज को ब्लो अप करते हैं और उसी चीज को कैटलाइज करके अपनी पॉलिटिकल, अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, सबसे आज नहीं, मैं आपको बताऊं कि 1952 का दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, 1952 के मुसलमानों से हम इल्तिजा करते हैं कुर्बानी के टाइम पे, जब कुर्बानी का वक्त आता है, उस वक्त दारुल उलूम देवबंद का वो फतवा है, मैं अभी भी मेरे पास है, कि मुसलमानों से हम इल्तिजा करते हैं कि कुर्बानी के वक्त, ईद उल अजहा के वक्त गाय की कुर्बानी ना करें, मुसलमान गाय की कुर्बानी ना करें, इसलिए कि इससे हमारे हिंदू भाइयों की आहट को तकलीफ होती है, उनके सेंटीमेंट को, तो हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे, और हम परहेज करें, बिल्कुल ना करें। तो हम तो हमेशा कहते हैं, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे पड़ोसी को अगर किसी चीज से तकलीफ है तो वो काम बिल्कुल मुझे नहीं करना चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब मुसलमानों में बहुत बड़ी तादाद, कुछ लोग से आप उसको वो नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान अब गाय की कुर्बानी ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, कि जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है भाई, ठीक है, अगर नहीं है तो मत करो, क्योंकि कुर्बानी जो है वो कंडीशनल है, कि अगर आपके पास इतने पैसे हों और वो आप कर सकते हो तो करो, वरना मत करो। दूसरी बात, कोई गाय का गोश्त खाना कोई रिलीजियस सैंक्टिटी नहीं है हमारे लिए, ये नहीं कहा कि गाय का गोश्त खाओ उससे कोई पुण्य मिलेगा, भाई खा सकते हो, ठीक है, तो हम नहीं खाएंगे, भाई क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई थोड़ी हम उससे भूखे मर जाएंगे, भाई सब्जी खाएं। तो गाय का गोश्त खाना कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन बिल्कुल नहीं है, और अब मुसलमानों के अंदर बहुत धीमे धीमे ये जा रहा है, और कोई 90%, 95% मुसलमान अब ये समझ गए कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ गुजरात में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, सालों से अब गाय की कोई कुर्बानी होती ही नहीं है, भाई भैंस की करो। 1857 में 1857 में जो म्यूटिनी हुई थी, इस म्यूटिनी के पीछे बहुत हद तक यही गाय सुअर का मामला था। अगर आपको ज्ञात होगा कि वो जो एकता हुई थी जिससे अंग्रेज डर गए थे, उस एकता के पीछे वो बुलेट थी जो कि मुसलमान मुंह पे नहीं लगाता था, क्योंकि वो सुअर का चमड़े का प्रयोग किया जाता था। तो आज अगर वो सेंटिमेंट 200 साल पहले हिंदुओं ने ख्याल रखा, तो आज ऐसे सेंटिमेंट्स को ख्याल रखने में इतनी क्या दिक्कत हो रही है कि भागवत नहीं जी नहीं, को बिल्कुल नहीं, नहीं हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल अब मुसलमान जो है ना गाय की कुर्बानी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, कुछ, मैंने कहा ना कुछ लोग करते होंगे, जनरली अब जो है ना मुसलमानों को इसमें बिल्कुल, क्योंकि मालूम है कि भाई मैं क्यों मेरे पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाऊं, बिल्कुल नहीं। देखिए, और बीफ जो है ना, बीफ अभी जो ज्यादा बिकता भी है ना मुल्क में, वो काऊ मीट नहीं है, वो बीफ इज बफेलो मीट, लोग है ना बीफ को मिला लेते हैं, भाई काऊ मीट है ही नहीं। और मैं एक और बात कहता हूं यहां पर, हदीस में प्रॉफिट ने एक बात कही है, हदीस में आता है कि गाय का दूध जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गाय का गोश्त मुजिर है, जहर है। ये कब कहा? 1400 साल पहले। और आप देखिए कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो सबसे ज्यादा काऊ मीट में है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमको गाय खाने का कोई जरूरत ही नहीं है, सर ये गाय की ट्रस्ट का कुर्बानी मैटर करने है, की कोई एक जरूरत नहीं विश्वास है। का, एक ट्रस्ट का मैटर है। ये ट्रस्ट जो है ये लोगों का धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इवन द अंडरवर्ल्ड इज वेरी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड, इफ नॉट फुल्ली एसोसिएटेड with the Muslim world, that probably had its roots to probably a Karim Lala who came from all the way from Afghanistan. But those were the days during Mr. Thackeray's time, when Karim Lala, Haji Mastan were not known for these kind of notorieties, terrorism, especially kind of drug terrorism. These were things which Mr. Karim Lala is known to completely abhor. When you compare that with today's times, Muslims are the underworld, especially after the 1993 Mumbai blast. Their name has been associated with all kind of terrorism activities globally. I mean, there have been, and so this trust factor,
which has been, in a huge deficit over years, is something which needs to be built over time. What can the Muslim community do to, because आप फिर वही बात कहेंगे कि दो लोग अगर बम फोड़ देते हैं तो पूरी कौम को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो इसका पिनसिया क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये दो लोग इसमें से क्यों निकल रहे हैं और क्यों निकलते हैं, ये भाई शॉर्टकट देखिए, मेथड ऐसा क्यों लिया जाता ऐसा है, देखिए ऐसा है कि टेररिज्म में तो हिंदू मजहब से भी जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो मुसलमान भी हैं। लेकिन वो कोई हिंदू अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या सिख इन्वॉल्व है, जो आज हमारी हुकूमत लड़ रही है, तो क्या आप सारे सिखों को पेंट करेंगे? तो ऐसे ही भाई ठीक है, वो है, दे हैपन टू बी मुस्लिम, दैट्स इट। उनका आप बताइए कि इस्लाम से क्या लेना देना? भाई वो मुसलमान है बस। अंडरवर्ल्ड की जो एक्टिविटी है उनकी जो भी है, तो क्या उसकी इस्लाम इजाजत देता है? हमारे यहाँ अंडरवर्ल्ड के जो डॉन थे अहमदाबाद में, मुसलमान थे, वो शराब का कारोबार करते थे सबसे ज्यादा। तो शराब तो हराम है इस्लाम में। तो आप बताइए, वो मुसलमान डॉन थे और सबसे बड़ा उनका कारोबार किसका था? शराब का था। जुए खाने चलाते थे। जुए की इजाजत इस्लाम किसी भी कीमत में नहीं देता। तो अब वो मुसलमान थे, क्या करेंगे आप? और अंडरवर्ल्ड डॉन जो होते हैं ना, जहां भी, याद रखना, उनको हमेशा पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलती है, मुसलमान की नहीं मिलती। ये आप निकाल दीजिए दिमाग से। जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन हमने तो अपनी जिंदगी में देखे ने, दे ऑलवेज हैड पॉलिटिकल पेट्रोनेज, नॉट द मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये पॉलिटिशियंस उनको इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए, और वो चाहे फिर मुसलमान डॉन हो या हिंदू डॉन, वो अपना काम करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का पेट्रोनेज कभी भी नहीं मिला उनको। है। जो गोधरा का कांड हुआ और जो 2000 का जो पहला दशक है, तो मोदी जी जब गुजरात में रहे, उस दौरान काफी डिफरेंसेस रहे बिजनेसमैन के साथ में, कम्युनिटी के साथ में। आप भी उनमें शामिल थे और आपको देश भी आप छोड़ने का विचार करके चले गए थे। इनफैक्ट यू वर supposedly the news says that you were in London for a few years, and what made the change of mind? Was it just a dialogue with Mr. Modi as a chief minister, the trust that he probably, how did he invoke that trust in you to come to this stage in life? देखिए, एक बात तो ठीक है भाई, मैं और हम लोग सब ये समझते हैं कि मेरा मुल्क यही है, हिंदुस्तान है, यहीं हम पैदा हुए हैं, यहीं जिएंगे, यहीं मरना है हम चाहे कहीं भी चले जाएं। मैं अगर इंग्लैंड चला जाऊं या अमेरिका चला जाऊं, वहां मुझे वो कभी अमेरिकन नहीं बोलेंगे, मुझे कहेंगे यू आर एन इंडियन और यू आर एन एशियन, है ना? वहां इसलिए वहां पाकिस्तानी भी साथ हो जाते, बांग्लादेशी भी हो जाते, क्योंकि यू आर ऑल ब्रैकेटेड एज एशियन। आप चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं सऊदी अरब भी जाऊंगा तो वहां मुझे लोग ये नहीं कहेंगे मैं मुसलमान हूं, बोलेंगे यू आर एन इंडियन। यूएई में मैं जाऊंगा तो आई एम ब्रांडेड एज एन इंडियन। तो ये जो 2002 का जो हुआ था, और उसके बाद हम लोग खुद विक्टिम थे राइट्स के, और जब मोदी साहब आए वहां इंग्लैंड, तो हमारी उनसे मुलाकात हुई और हमने सोचा कि भाई ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर हमारे भी हो। इसलिए कि मोदी साहब 2/3 मेजोरिटी से जीत के आ गए थे दिसंबर 2002 में। तो हमने सोचा चलो भाई हम उनसे बात करें, और वो हमने बातचीत का एक रास्ता शुरू किया। इसीलिए मैं जो बात कहता हूँ, आप जो दो बातें, जो मैं तीन बातें कहता हूँ कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। एक तो आपको 100% एजुकेटेड होने की जरूरत है, यानी काबिलियत, तालीम की बुनियाद पर ईमानदारी और अमानतदारी। दूसरा, तीसरी बात, इस मुल्क का जो हिंदू है उसके साथ हमको भाईचारगी के साथ रहना पड़ेगा, इससे कि वो भाई हम लोग सदियों से साथ में रहे, साथ में ही रहना है। हमारा मुस्तकबिल जो है, फ्यूचर यही है, इन्हीं के साथ है। और चौथी बात, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे हो, उस गवर्नमेंट के साथ हमारा प्रोसेस ऑफ डायलॉग होना चाहिए। तो उसी की बुनियाद पर हम मोदी साहब को मिले था कि भाई आप बताइए। और मोदी साहब बहुत ही उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया तब, और कहा यार आओ, तुम मेरे भी हो, मैं चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी हूं। मैं चीफ मिनिस्टर अब बन गया हूं तो मैं पूरे 5 करोड़ जो गुजराती है उनका सबका मैं चीफ मिनिस्टर हूं। अपना काम तो कराओ मुझसे, भाई तुम्हारे मसले क्या है रखो मेरे सामने, बताओ क्या है। तो ये जो उनकी जो पॉजिटिविटी थी जो पहली मुलाकात में, उसी ने हमको, और मैं वापस आया यहाँ पर और हम रहे यहाँ पर, और हमने एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग शुरू किया बिटवीन मोदी एंड द गवर्नमेंट, यानी मोदी की गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम कम्युनिटी। और वो एक बहुत बेहतरीन जमाना जो 10-11 साल का जो उनका यहाँ रहा, फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर बन गए उसके बाद भी हमने वो सिलसिला जारी रखा। तो मेरा एक मानना है कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो भी है,
उस गवर्नमेंट के साथ मुस्लिम कम्युनिटी की अभी मैं आप बात कर रहे हैं, दैट कम्युनिटी, और वो भी आउटसाइड द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स, जो सिविल सोसाइटी है मुसलमानों की, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन है या क्लेरिक्स हैं, उनका एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ होना चाहिए। अपनी बात रखो सामने डायरेक्टली उनके सामने। फेडरल स्ट्रक्चर में ये इट बिकम्स अ डबल एजेड सोर्ड। आपका जो सजेशन है, फेडरल स्ट्रक्चर में ये दो धारी तलवार के तरह पे यूज किया जा रहा है, तो इसका क्या काट हो सकता है? क्योंकि आप समझ रहे हैं मेरा आप प्रश्न मुझे एक यही। बात बताइए, कैसे? आप मुझे बताइए कि मैं अपनी सरकार से बात नहीं करूं तो किससे करूं? अगर गुजरात में अगर मुसलमानों का कोई भी मसला है, तो मैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर से नहीं बात करूं तो क्या हसीना वाजिद से बात करूं या इमरान खान से बात करूं? अगर कोई ये समझता है भाई जो भी गवर्नमेंट है मेरी सरकार है, भाई मेरी भी है वो सरकार। वो कहते हैं ना, मोदी साहब क्या कहते हैं, मैं 140 करोड़ के लोगों का प्राइम मिनिस्टर हूं, कहते हैं ना। गुजरात में कहते थे मैं 6 करोड़ गुजरातियों का चीफ मिनिस्टर हूं, मेरे 6 करोड़ गुजराती, तो हम भी हैं उसमें। तो मैं समझता हूं कि हमको अपना, क्योंकि देखिए मुसलमानों का, जब आपने जो बात शुरू में की थी उसके जवाब में, क्योंकि मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो आया नहीं अब, है ना। भाई एमएलए नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, तो क्या करें? तो डायरेक्टली, और वो एनकरेज करते हैं। जितनी बार भी मुस्लिम समुदाय के लोग मोदी साहब से, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब, और अब प्राइम मिनिस्टर है, या उनके और भी स्टेट में अभी मैं आसाम गया था, तो आसाम के चीफ मिनिस्टर के सामने मैंने मुसलमानों के इश्यूज रखे, तो बहुत ही वेलकम किया उन्होंने, कहा कि यार बताइए क्या है, क्या कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक रास्ता है, इसको मुसलमानों को अपनाने की जरूरत है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो मोदी जी को गोधरा के बाद में आप जैसे लोगों ने इंडिविजुअल तौर पे अगर अपने साथ जोड़ा, या आप खुद को उनके साथ जोड़ा क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, आज अगर वही मॉडल अगर वो ममता बनर्जी करती है, या केरल में पिनराई विजयन करते हैं, या लोग करते हैं, तो उस चीज को फिर बुरा क्यों माना जा रहा है और माइनॉरिटी अपीसमेंट का नाम क्यों दिया जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए अपीजमेंट की तो यहाँ बात ही नहीं है। मैं क्या कहता हूं कि अपना जो मसला है वो आप अपने चीफ, क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो स्टेट एंड सेंटर, मतलब स्टेट स्टेट का है। कुछ चीजें जो स्टेट कर सकती है वो सेंटर भी नहीं कर सकती। तो मेरा वो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, अगर अगर बंगाल के मुसलमानों का मसला है तो ममता बनर्जी से बात करें, अगर केरला वालों का है तो उनसे बात करें, मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर है, राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर है, उनसे रखें, और एक सेंट्रल लेवल पे भी हो, यानी पूरे हिंदुस्तान का जो मुसलमानों का एक संगठन हो जो डायरेक्ट आप प्राइम जैसे लोगों मिनिस्टर। का जो फायदा हुआ, जैसे आप जैसे व्यवसायी हैं, आप यू आर वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन ऑफ अहमदाबाद एंड द कंट्री, you say that you benefited with the talks with the erstwhile chief minister of Gujarat. So the same model, and if is adopted by these guys in Bengal or say in Kerala, you think that it is going to augur well for the nation? Because did the Muslims overall benefit in the state of Gujarat, or is it just individually you as a businessman? नहीं नहीं, देखिए इट्स नॉट ओनली अबाउट बेनिफिटिंग। बेनिफिटिंग तो देखिए मैं मानता हूं कि सरकार कोई भी काम करती है लार्जर, तो सबको फायदा होता है। जैसे भाई मोदी साहब ने अहमदाबाद को डेवलप किया, है ना, जो वो उसमें तो आप मान ही सकते हो कि जो मोदी साहब के जमाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है गुजरात में, वो पहले नहीं हुआ। यानी अहमदाबाद को अगर आप ले लो, तो जिस तरह के अहमदाबाद में फ्लाईओवर बने, सड़कें बनी है, और खासतौर से जो रिवर फ्रंट है, वो तो पूरे मुल्क में नहीं है, है ना। रिवर फ्रंट ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है दोनों बैंक्स पर, 30 किलोमीटर इस साइड पर और 30 किलोमीटर। खूबसूरत बनाया है, पार्क बनाया है, मतलब, और वो पूरे शहर से गुजरता है। उसमें हिंदू इलाके भी आते हैं, मुसलमान इलाके भी आते हैं। बस रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाई है जो पूरे मुल्क में कहीं और नहीं है। अहमदाबाद शहर के अंदर बीच में, सड़क के बीच में बसें चलती है, बिल्कुल सीधी, और वो 35 किलोमीटर चलती है। यानी अगर यूं आपको जाना हो तो 2 घंटे लगेंगे, वो बस के अंदर आप 30 मिनट में पहुंच सकते हैं। वो हर इलाके से पास होती है। अभी मेट्रो शुरू किया उन्होंने, तो और फिर इलेक्ट्रिसिटी हर देहात में गुजरात में है 24/7। तो ये जो डेवलपमेंट है, क्या ये मुसलमानों तक नहीं पहुंचता? बस हमको ये चाहिए, हमको कोई, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए यानी मुसलमानों के लिए कोई चीज कीजिए, नहीं, आप सबके लिए कीजिए, और ये देखिए कि वो मुसलमानों को भी फायदा पहुंचे, बस।
तो हम यही चाहते हैं। हम बंगाल में बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बंगाल जफर भाई, आपका माइक बंद हो गया, आपका माइक बंद हो गया। आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हाँ, देखिए मेरा ये कहना है कि गुजरात में या स्टेट में या मुल्क में सरकार जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो डेवलपमेंट करती है वो सबको पहुंचता है, मुसलमान को भी पहुंचेगा। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि सरकार कोई मुसलमान के लिए कोई चीज करे। भाई जैसा भी उनका मकान के लिए 2.5 लाख रुपए देते हैं, सबको देते हैं, मुसलमानों को भी पहुंचे। फिर वो गैस के सिलेंडर बांटते हैं, सबको पहुंचते हैं। टॉयलेट के लिए पैसे देते हैं, सबको पहुंचते हैं। तो हम यही चाहते हैं। हम चाहते जब हैं कि जब आप सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है और ऑनलाइन हो रहा है। बस अभी मेरी मेरी 2 घंटे पहले प्रकाश जी के साथ बात हो रही थी। प्रकाश जावड़ेकर ने 4 4 मंत्रालय एज ए कैबिनेट मिनिस्टर संभाले हैं। तो देश को हमसे थोड़ा ज्यादा ही समझते होंगे। आज की डेट में प्रकाश जावड़ेकर का कहना यह है कि मोदी जी के संरक्षण में जो डिजिटाइजेशन हुआ है, डिजिटल इंडिया हुआ है। देखिए, हम एक विकासशील देश है। यहाँ पर कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसको सराहना चाहिए। अगर डिजिटाइजेशन हुआ है, डिजिटल इंडिया बना है, तो ये बिचौलिए जो बीच में है, ये सब चीज तो हट हट ही रही है धीरे धीरे। ऑनलाइन अगर आप सबमिट कर रहे हैं, तो अब इस चीज को कहाँ पर कोई रोक देगा? तो ये बेनिफिट तो मुस्लिम को भी मिल रहा है। ये बेनिफिट क्या 70 साल से कांग्रेस को नहीं दिख रहा था कि बेनिफिट मुस्लिम को भी मिलना चाहिए? तो अगर मुस्लिम को मिल रहा है, तो क्या मुस्लिम को ये दिख नहीं रहा? तो वो अगर केंद्र, अब ये चीज, हाउ कैन दिस ट्रांसलेट इनटू दी लोकसभा वोट्स? बिकॉज ये जो स्टेट वर्सेस सेंटर का जो खेल होता है, जिसमें स्टेट में अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो जाती है। केंद्र सरकार जो है, बीजेपी की सरकार अगर आज है, वो हर जगह अचानक से 10 साल से सरकार चल रही है, 70 साल से तो चल नहीं रही। अभी 10 साल के अंदर में डिवाइड ज्यादा हुआ है, जोड़ना कम, एज पर द सोशल मीडिया नैरेटिव, एज पर द मीडिया नैरेटिव। तो अब इसमें इसका इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट जो है कैसे केंद्र सरकार के वोट्स में तब्दील हो, ताकि और सशक्त सरकार बने। अदरवाइज ये वापस ये कांग्रेस वापस ये मुस्लिम्स को यूज करके स्टेट लेवल में अलग सरकार जो बनती है, अलग अलग, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं बननी चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि कम से कम वो अपीजमेंट के बेस पे वो ट्रांसलेट ना हो, स्टेट वर्सेस सेंटर का जो डिवाइड होता है। इसके लिए मुस्लिम्स को क्या करना चाहिए और सोच को कैसे बदलनी चाहिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो विकास हो रहा है, उस विकास का फायदा जो आप कह रहे हैं, हर नागरिक को मिल रहा है। ये ऐसा नहीं कि मैं तुमको दूंगा तुमको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज को कैसे पहुंचाया जाए कि मुस्लिम्स इस चीज को, बेसिक फैक्ट्स को, ये मौलिक तथ्य है, इन मौलिक तथ्यों को कम से कम अपनावें। ये कैसे संभव है? देखिए, मुसलमानों को तो मैं बोलता हूं कि देखो, वोट जिसको भी देना है दो। यू डोंट बिकम अ पार्टी। होता है ना, जैसे वो धर देंगे आपको कि भाई जैसे बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमानों ने लिया। मैंने कहा नहीं भाई, हमने हमने कोई किसी को हराने का ठेका नहीं लिया। मैं अभी एक ग्रुप में बैठा था, मैंने कहा भाई क्या कांग्रेस पार्टी ने आपको 5,000 करोड़ दिए हराने के लिए? अगर दिए हो तो फिर हाँ करो। मैंने कहा भाई मुफ्त में क्यों करते हो? तो इसलिए देखिए, अब मुसलमानों का जो नैरेटिव है ना, जो पुराना है, ये पुराना है। अब मुसलमान ये सब चीजों में आता नहीं है कोई, इसलिए कि ये अपीजमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है अब, क्योंकि हो ही नहीं सकता। देखिए, एक सरकार में ये मानता हूं कि सरकार अगर अच्छी है तो वो हिंदू के लिए अगर अच्छी है तो मुसलमान के लिए भी अच्छी हो। ये हो ही नहीं सकता कि ये सरकार हिंदू के लिए अच्छी है और मुसलमानों के लिए खराब है, या मुसलमानों के लिए अच्छी है हिंदू के लिए खराब है। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मुसलमान जो है, अब जो है, वो वोट करेगा अपने एतबार से। और ये जो स्कीमें हैं, जितनी भी जो जो बेनिफिशियरीज हैं ये स्कीमों के, सरकार के, तो उसमें प्रोपोर्शनेटली मुसलमान भी हैं। तो मुसलमान उस एतबार से अब वोट करेगा। वो दिन अब चलेगा, इसलिए कि मुसलमान अब जो है ना, वो पार्टी नहीं बनेगा किसी का। वो क्वाइटली जिसको उसको वोट देना है वो देगा। और वो अब जो है, मुल्क के अंदर जो तरक्की हो रही है, जो भी डिजिटलाइजेशन, या मैं अभी अहमदाबाद में हूं, आप नहीं मानेंगे, अभी अहमदाबाद जो है वो स्लोली बहुत बड़ा आईटी का हब बनने जा रहा है। आफ्टर बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे, अहमदाबाद का जो सर्किट गांधीनगर हाईवे, वहां पर जबरदस्त तादाद आईटी कंपनीज आ रही है। बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान बच्चे काम करते हैं उसमें। बल्कि मैं उस दिन देख रहा था कि ऑलमोस्ट 42 आईटी कंपनीज ओन्ड बाय मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स हैव कम अप। तो ऐसा नहीं है। तो मैं ये बोलता हूं कि भाई तुम अपनी प्रोडक्ट लेकर आओ,
अपने आइडियाज लेकर आओ, लोग लाइन लगाएंगे आपके आइडिया और आपके प्रोडक्ट में पैसे डालने के लिए। तो ये जो है ना हिंदू मुसलमान वाला, ये सिर्फ रह जाएगा थोड़ा बहुत ट्विटर पे, फेसबुक पे या मीडिया में, ये ग्राउंड पे नहीं है और धीमे धीमे ये खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने अभी बदलाव किए, स्मृति ईरानी को माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया। नजमा जी और मुख्तार अब्बास नकवी ऐसा क्या काम नहीं कर पाए आपको लगता है जो कि स्मृति ईरानी के जिम्मेदारी में अब दिया गया? देखिए, मैं सरकार जो होती है ना, सरकार एक पॉलिसी ड्रिवन है। जैसे मोदी साहब ने आते ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक पॉलिसी बनाई और वो ऑटो पायलट पे चलती है, और स्मृति ईरानी आ रही है, वही अच्छे से चल रहा है जो जो हो रहा था, जिस तरह से सब चीजें उनकी उसमें। तो मैं नहीं समझता, मैं इसको ये नहीं समझता कि भाई माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री कोई मुसलमान के ही हाथ में होनी चाहिए, नहीं, उसके हाथ में होनी चाहिए जो सक्षम है, जो कर सकते हैं। इट इज अबाउट रीचिंग आउट टू पीपल, जो भी है भाई, उनकी स्कॉलरशिप है, हज का जो है पूरा निजाम जो चलता है, तो आई थिंक वहां पर यू नीड एफिशिएंट पीपल रादर देन अ मुस्लिम और अ हिंदू। मैं ये नहीं मानता। You know, Mohan Bhagwat ji is recently, they've been touring across, but he's in Bengal, he's in Calcutta on the yesterday and today. And Hindutva versus Hindu, ये जो हिंदुत्व है इसी चीज को, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये कोई धर्म नहीं है कि बोला जा रहा है कि आप टीका लगाइए और आपको मंदिरों में जाना है या आपको सैफ्रनाइजेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पॉलिटिकल इश्यूज है, इनको हम बार बार, वी डू नॉट लाइक टू कीप रिपीटिंग इट लाइक ए ब्रोकन रिकॉर्ड। बट मुस्लिम तक ये बात कैसे पहुंचे कि हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है? इट्स नॉट, nobody is imposing a religion on you, nobody is imposing a way of life। इट्स अ वे ऑफ लाइफ विच शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल। अगर हम कहें कि सूर्य की पूजा करनी है, तो सूर्य तो तुम्हारे लिए भी है और हमारे लिए भी है, और सूर्य से बेनिफिट तुम्हें भी हो रहा है और हमें भी हो रहा है। इसको तुम टीका के साथ मत जोड़ो, टीका के साथ जोड़ने वाली ये बात नहीं है। तो ये चीज कैसे मुसलमानों तक पहुंचाई जाए? क्योंकि भागवत साहब जगह जगह जाके 100 लोगों को इकट्ठा करके बोल रहे हैं और 2-4 नामचीन लोगों को बुला बुला के उनसे बात करते हैं, जो फिर अपनी रोटी सेकने लगते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? बस मैं अपनी बात आखिरी, क्योंकि मुझे भी जाना है, लास्ट में मैं बोलूंगा। देखिए, मैं हम ये मुसलमान जो है ना, वो ये कोई नहीं सोचता कि भाई ठीक है हिंदुत्व और हिंदुइज्म, वो बोलता है कि ठीक है कोई, क्योंकि मैं रात दिन बहुत सारे जो बीजेपी के जो हिंदू हैं भाई, जिनका हिंदुत्व थॉट प्रोसेस है, या आरएसएस के बहुत सारे लोगों से मेरा रात दिन बातचीत होती है, मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता। तो ये मुसलमानों को इससे कोई बहुत ना उसकी कोई फिक्र है मुसलमानों को, ना कोई डर है। और देखिए, आरएसएस आज से नहीं है भाई, आरएसएस 1925 से है। अच्छा, जो बीजेपी की हुकूमतें तो है ना हिंदुस्तान में, भाई कितने स्टेट में, मेजोरिटी स्टेट्स में हिंदुस्तान में हुकूमत किसकी है? बीजेपी की है। हमारे मुल्क में जो हुकूमत है उसमें, यानी हमारे प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके जितने मिनिस्टर सब कहां से आए भाई? आरएसएस से आए। अभी आप प्रकाश जावड़ेकर साहब की बात कर रहे थे, प्रकाश जावड़ेकर साहब भी आरएसएस से आए। तो मैं नहीं समझता कि अब वो बाइनरी रही है, इसलिए कि ठीक है आरएसएस के लोग हैं, हमें कोई अब मुसलमान को ना आरएसएस से कोई डर है, ना हिंदुत्व से डर है, कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है और ये मुल्क इसी तरह चलेगा। इसलिए कि हिंदू और मुसलमान जो है ना, ये दो पहिए हैं इस मुल्क के, एक बड़ा भाई है एक छोटा है, इसी तरह चलेगा और यही रास्ता आगे है। और क्योंकि सेक्युलरिज्म की जो बात की थी वो इनग्रेंड है यहाँ के खमीर में, और चूंकि इस मुल्क का हिंदू सेक्युलर है, इसीलिए मुसलमान आज तक जिंदा है और आराम से चल रहा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई डर है, ना किसी चीज से उसको डरने की जरूरत। जफर भाई, बिफोर वी एंड, ये तो चर्चा तो सब्जेक्टिव हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ और कर रहा था कि इसको सब्जेक्टिव ना रखा जाए, तरह तरह के मुद्दों को टच कर सके। और मैंने ज्यादा डेटा भी यूज नहीं किया, क्योंकि मैं खुद पर्सनली उतना बिलीव नहीं करता डेटा जैसी चीजों पर, क्योंकि हमें जो सड़क पे दिख जाता है वही डेटा है हमारे लिए। अभी मेरा कहना यह है कि कन्वर्शन एक नींव रही है किसी भी धर्म के बढ़ने के लिए। कन्वर्शन और उस चीज को बढ़ाने के लिए कन्वर्शन एक माध्यम रहा है। मुसलमानों को इसके लिए बड़ा ब्लेम किया जाता है कंपेयर टू
even now, if you compare that with the other communities, especially the Catholics, the Christians. So ये conversion वाला जो backdrop है, इस backdrop की जो negative छवि है, जो कि मुसलमानों के साथ में एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, इस चीज के विषय में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आखिर में ये कहूंगा, पहली बात तो देखिए, इस्लाम में कन्वर्जन जो है ना, वो कोई बहुत है ही नहीं। यानी हमारे, इसलिए आप देखिए, इस्लाम में कोई सेरेमनी नहीं है। क्रिश्चियनिटी में अगर कोई क्रिश्चियन बनता है ना, तो बैप्टिज्म होता है, उसको बाकायदा क्रिश्चियन बनाते हैं, उसका एक विधि होती है। हिंदुइज्म में जनोई या जो भी होता है। इस्लाम में कन्वर्जन है ही नहीं, इट इज बिटवीन पर्सन एंड द गॉड। इसलिए हमारे यहाँ अगर ये जो लोग अगर ये समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। भाई, जिसको जो मानना है माने। यानी हमारे यहाँ तो मैं अपने बेटे को भी नमाज नहीं पढ़वा सकता। बहुत बहुत तो मैं उसको कह सकता हूं कि भाई देखो, ये नमाज पढ़ना है, ये है। उससे ज्यादा बेटे को भी आप नहीं कह सकते। आप अपनी वाइफ पर भी जबरदस्ती नमाज जैसी अहम चीज, यानी वो ईमान के, मुसलमान के ईमान का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए भी आप कंपल्शन नहीं कर सकते। आप बहुत बहुत तो कह सकते हो, दावत दे सकते हो। तो मैं समझता हूं कि कन्वर्जन जो है ये कोई चीज ही नहीं है। बल्कि मेरे पास एक मरतबा कोई डिबेट हुई थी, उसमें वो आजकल वो एक्स मुस्लिम आए थे, तो मैंने बोला भाई देखो, मुझे आपको कोई इस्लाम समझाने की जरूरत नहीं है, ना मुझे समझाना है। आप जो मानते हो, जो आपकी बिलीफ है, आपको मुबारक। मेरा काम आपको कोई कन्वर्ट करना है या आपको कुछ कहने का नहीं है। आप अपनी बिलीफ पे रहिए, मैं अपनी बिलीफ पे रहता हूं। और इसके लिए कुरान कहता है, कुरान के एक वर्स है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। आप मजहब आपके साथ, मेरा मजहब मेरे साथ। ये मेरा एक्सियम है। इसलिए कन्वर्जन जो है, मैं बिल्कुल उसको ना मानता हूं। अगर जिसको ये भाई, जिसको अगर जो मानना है माने। मोदी जी ने बड़े अच्छे हमारी जो समझ है और जो देश के लोगों की समझ है और जो राइट थिंकिंग पीपल है, उनकी जो समझ है ग्लोबली और इंडिया में, विदाउट एनी काइंड ऑफ पार्टिजन नैरेटिव, उनका यही सोचना है कि ट्रिपल तलाक जैसी चीजों को हटाकर इस तरह के जो कुछ वॉइसेस थे, जो मैं पर्सनली एक तरह की विकृति मानता हूँ, इन चीजों को हटा के मोदी जी ने और उनकी जो सरकार है, उसने इंसानियत के ऊपर में एहसान किया है। सिर्फ मुसलमानों पर या हिंदू पे नहीं किया है, औरतों पर, इंसानियत पर एहसान किया है। और एट द एंड ऑफ द डे ये जरूर हमें समझना चाहिए कि अंग्रेजों और मुसलमानों में, जो दोनों इस देश में आए, बाहर से आए भारत में और अखंड भारत में, ये फर्क इतना ही था कि वो सिर्फ अंग्रेज आर्थिक शोषण के लिए आए और मुसलमान राज करने आए। लेकिन राज करते करते, और वो जो उनका उनका जो मॉडल था, वो मॉडल आज भी फ्रैगमेंट्स में लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ द डेवलपमेंट पार्ट being completely overlooked, and being and flying and flowing with the development has been overlooked by the Muslims, and they have been focusing more on that, on that on those vices of the Islamist leaders and rulers who came to India. Had they extricated these two aspects of the Muslim community, today Muslims would be benefiting more than anybody else in this country, because the rules, regulations, constitution, जो संविधान है, वो सबके लिए समान है। इस देश में अभी तक संविधान जो हिंदू के लिए है, वही मुसलमान के लिए है। और इतना ही अगर हम समझ लें, तो ये जो रिलीजन है, ये जो धर्म है, जो इंसानियत को सही राह पे चलने के लिए बनाया गया था, सभ्यता की तरफ ले जाने के लिए चलाया गया था, उस धर्म को हम लोग शोषित ना करके, शोषण ना करके, एक दूसरे अपनी पर्सनल रोटियां ना सेके, यही हम लोगों को आगे सोच के बढ़ना चाहिए। जफर साहब, थैंक यू सो मच। आपने इतने, बाय द वे, बिफोर वी एंड, तबलीगी का कोई रोल है भारत में? तबलीगी जो जमात आप रिप्रेजेंट करते हैं या करते थे, उसका कोई रोल है अब? देखिए, तबलीग जमात का एक बहुत सिंपल रोल है। तबलीग जमात, पहली बात तो वो नाम ही गलत है। तबलीग, उसका नाम, जो उसके फाउंडर थे ना, उन्होंने उसका नाम कभी तबलीग नहीं रखा था, ये तो लोगों ने रखा। उनका नाम था यानी वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है मुसलमान के लिए, कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, अच्छा नागरिक बने, अच्छा बिजनेस पार्टनर बने, अच्छा हस्बैंड बने। उसका बिल्कुल रिमोटली कन्वर्जन या किसी को वो फैलाना, वो बिल्कुल नहीं है। वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। और मुझे वहां से बहुत कुछ मिला है तबलीग जमात से। वहां से ये मेरा जो आउटलुक है, मॉडर्न आउटलुक है या जो सेक्युलर आउटलुक है, ये तबलीग जमात से ही मिला है। और मैं लास्ट में यही कहूंगा
कि हमारा मुस्तकबिल जो है, हमारा फ्यूचर जो है इस मुल्क के साथ है, और हमें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्षम है, वो सबके लिए बराबर है। मुल्क में हुकूमतें आएंगी जाएंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन वही रहेगा, मुल्क तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, इसलिए हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक एक थैंक यू देश सो मच। एक देश एक चुनाव में आपका विश्वास है? अब वो तो देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी वालों पे रखिए, वो क्या बोलते हैं। 4 शादियों में? है ही नहीं। इस्लाम ने ये कहा है कर सकते हो, ये नहीं कहा करो, बल्कि वो कुरान की जो आयत है जिसमें ये जिक्र है एक से ज्यादा शादी का, वहां 20 कंडीशन है, और आखिर में कुरान की गाइडलाइन क्या है कि आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे इसलिए मत करना। तो एक से ज्यादा शादी की तो इस्लाम ने कंडीशन के साथ दी है इजाजत, वो भी 1500 साल पहले। वो भी कंडीशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर सकते हो तो। सर मुझे लगता है कि ये चर्चा बड़ी रोचक रही। 1500 साल पहले अगर किसी ने कुछ लिखा था, कन्वीनियंस, opportunism and escapism is what drives human nature. Thank you so much.